Yes, students. I am on page number 277 and we are going to discuss the case study of the integrated wastewater management. Okay, madam. What we have discussed on that day. ठीक है, integrated wastewater management means the wastewater is considered as the water that is actually the sewage water. ठीक है, सीवेज वाटर कौन सा वाटर हो सकता है दैट कम्स फ्रॉम आवर हाउसेस. ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि सीवेज के अंदर भी कोई भी वाटर जो है वो अगर सीवेज वाटर है तो दैट सीवेज वाटर इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स जो है सीवेज वाटर के अंदर हो सकते हैं. तो क्या है, सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स दे आर सॉलिड पॉल्यूटेंट्स. कुछ pollutants कैसे हैं, they are the solid pollutants and some pollutants they are the dissolved pollutants. ठीक है, it is very easy to separate the solid pollutants by using the conventional methods of sewage treatment. ठीक है, Navneet, what are these conventional methods of sewage treatment? Yes, Navneet, unmute yourself. What are the conventional method of sewage treatment? There are three methods come under this. बताइए पहला कौन सा है? The conventional sedimentation. The biologists developed a series of 6 approach. Number one is sedimentation बेटे. ठीक है. Second one is filtration. हम पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में. And third one is chlorine treatment. ठीक है, जब हमारा वाटर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो हम उसको क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, तो what the people done under this project. ठीक है, I have also tell you the name of the town. What is the name of the town? What is the name of the town? It is Arcata town. ठीक है बेटे, where this town is situated? It is situated at the northern coast of California. ठीक है, कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न कोस्ट पे एक स्मॉल टाउन था और वहां के जो पीपल थे, ठीक है, दे हैव डिसाइडेड a project and that is known as the integrated waste water management. ठीक है, they have not suggested this method at their own but with the help of some of the biologists of the Humboldt University. ठीक है, Humboldt University के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मिलकर आर्केटा टाउन के जो लोग थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वी हैव डन द इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. और इस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, दो स्टेप्स जो हैं वो यूज किए. ठीक है, फर्स्ट मेथड जो था वो कौन सा मेथड था? ट्रेडिशनल मेथड था सीवेज ट्रीटमेंट का. व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट? they use three steps: sedimentation, filtration and chlorine treatment. ठीक है बेटे, whatever is present in the sewage, it contains the solid waste, it contains some dissolved impurities. ठीक है, dissolved salts of nitrate, sulfate, phosphates. तो उन्होंने क्या किया कि जो भी चीजें जो हमको नजर आ रही हैं सीवेज के अंदर, ठीक है, उसमें से जो इजीली विजिबल है दे कैन बी फिल्टर्ड आउट. इट मे बी द सॉलिड मटेरियल और कुछ वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इजीली किसकी फॉर्म ले सकती हैं, सेडिमेंट्स की. तो उनके तो उन्होंने सेडिमेंट्स फॉर्म कर लिए. इस तरह से फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन से दे कैन इजीली सेपरेट आउट दोस pollutants that are physically present in solid form in the sewage. And after sedimentation and filtration they done the chlorine treatment. उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्लोरीन ट्रीटमेंट किया और जो polluted water था, ठीक है, उसमें क्लोरीन गैस जो है उसको पास कर दी. तो कहते हैं कि वाटर जो है वो काफी हद तक जो पोल्यूटेड वाटर था वो क्या हो गया, यहाँ पर प्यूरिफाई हो गया. पर ये नहीं कह सकते कि देयर इज 100% प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट वाटर बिकॉज स्टिल व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड दैट वाटर द डिसॉल्व्ड पोल्यूटेंट्स. ठीक है, अभी भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डिसॉल्व्ड पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है. ये डिसॉल्व्ड पोल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? दिस मे बी द सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फेट, दिस मे बी द सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट. ठीक है, और कौन से सॉल्ट हो सकते हैं? नाइट्रेट सॉल्ट.
ठीक है, mountain salt, phosphate, sulfates and nitrates that comes under sewage water by various domestic tasks that we perform at our home. ठीक है, washing of clothes, washing of dishes in the kitchen, washing of clothes. Sometimes we use soaps, detergents, and sometimes the remains of the food is there. So all of these contain these nutrients that are in the form of dissolved salt, and these are the phosphate, sulfates, and the nitrates. So what they did the second step. What is the second step? ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 60 हेक्टेयर लैंड जो है, ठीक है, 60 हेक्टेयर लैंड्स जो है उसके ऊपर कितने मार्शलैंड्स जो है वो फॉर्म कर दिए, 3 मार्शलैंड्स फॉर्म कर दिए। देखो अपनी बुक के अंदर they have occupied 60 hectare lands and they form the marshy areas there, ठीक है, 6 marshy areas उन्होंने फॉर्म कर दिए थे। और उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ खास तरह की चीजें जो है मार्शी एरियाज के अंदर ग्रो करवाई। ठीक है, व्हाट आर these are actually those things which can easily absorb these dissolved pollutants। ठीक है, क्या क्या उन्होंने सीडेड अप किया उसके अंदर, प्लांट्स जो है उनको डाल दिया, कुछ प्लांट्स के सीड्स लगा दिए, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो किया, some fungi is there and some other type of microorganisms। Okay, but all of these things, plants, bacteria, fungi, and microorganisms, they are seated up in those 6 marshy lands which covers 60 hectares of the land। ठीक है बेटे, अब क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, फिजिकल मटेरियल जो है उसको रिमूव कर लिया था, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर लिया था बाय द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। तो आफ्टर दैट सीवेज वाटर, ठीक है, जो भी सीवेज वाटर था जिसमें क्या प्रेजेंट थी, डिसॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट थे, उसको उन्होंने पास किया इन 6 मार्शी लैंड्स के। ठीक है, तो the sewage water is somewhat purified but it still contains the dissolved salts। It is later passed into 6 marshy areas, 6 marshlands के अंदर उनको पास किया। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि by the application of these plants, bacteria, fungi and microorganisms, the dissolved pollutants that are present in that sewage water is finally absorbed। ठीक है बेटे, ये absorbed हो गया एंड वाटर क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया। तो इस तरह से आर्केटा टाउन के जो पीपल थे उन्होंने अपना एक सिटीजन ग्रुप बनाया, देखो नेम उसका दिया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटीजन ग्रुप, इट इज नोन एज फ्रेंड्स ऑफ द आर्केटा टाउन, दैट इज होम। और कहते हैं कि यही जो है वो इस प्रोजेक्ट की अपब्रिंगिंग, ठीक है, सेफ गार्डिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके बेटे, so this is the case study that is related with water pollution, and here in the last paragraph one another concept is discussed, what is that, eco-sand toilets। ठीक है, so what is given in your book that we use lot of water to flush our toilets। ठीक है, हम अपने टॉयलेट्स जो है हमको फ्लश करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर यूज करते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम जो है क्या करें, इस वाटर को सेव कर लें, ठीक है, तो वो हमारी एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो हाउ कैन वी मैनेज द डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसका डिस्पोजल हमें कैसे करना है फिर। ठीक है, तो हियर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड वन कंसेप्ट and that is the concept of eco-sand toilet, and it is an eco-friendly practice of management of the human waste or human excreta। देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है it is a ecological sanitation method and that is a kind of a sustainable system for managing the human excreta and the successful disposal of the human waste। क्या करना है इसमें, जो भी human excreta है उसकी रिसाइकलिंग करके, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा लेना और उसको क्या करना है, हमें रिसाइकल कर लेना है। और रिसाइकलिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे नेचुरल फर्टिलाइजर्स में, कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर्स। एंड व्हाट इज द एडवांटेज of converting this human excreta into natural fertilizers, that we can easily avoid the use of chemical fertilizers। ठीक है बेटे, वैसे हमने क्या करने थे अपने फील्ड में, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने थे, but here we are successfully managing, we are converting the human excreta into dry compost and that compost is later act as a natural fertilizer।
and in this way we can minimize the use of chemical fertilizers. तो इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो तो मैनेज हो ही जाएगा, पर उसके साथ साथ क्या होगा, हमें फर्टिलाइजर भी मिल रही है एंड हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है, तो उसमें उसने बताया है कि ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड है ह्यूमन एक्सक्रीटा के मैनेजमेंट का, नंबर 1। नंबर 2, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ये चीप मेथड है। ओके बेटे, हाइजीनिक है, देखो बुक के अंदर हाइजीनिक मेथड है ये। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस इको फ्रेंडली टॉयलेट्स, तो आपने लिखना है कि it is a method by which you can successfully manage the disposal of the human excreta. You can convert human excreta into natural fertilizers, and it can avoid the use of chemical fertilizers. And besides this, it is an eco-friendly kind of practice. And secondly, it is a cost-effective method and a hygienic method too. ठीक है बेटे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि where these kind of toilets they are generally used. तो इंडिया के अंदर अभी इनका जो यूज है वो केरला के अंदर यूज किया गई है। ठीक है, तो ड्राई कंपोस्ट जो है बनाई जा रही है 100% टॉयलेट्स की हेल्प से, और इसके अलावा जो है वो श्रीलंका के अंदर जो है ये कंसेप्ट जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक, तो ये देखो छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसमें से हमें 2 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर इकोसैन टॉयलेट्स एंड हाउ दे आर एडवांटेजेस and how they successfully manage the human waste or human excreta. ठीक है बेटे, now we are starting with our next topic and that is the solid waste management. ठीक है, solid waste management देखो as the name itself indicate what is solid waste. ठीक है, क्या होगा solid waste? तो कहते हैं कि sometimes we can use one another for this waste and that is municipal waste. Okay, what the people that are related with the municipal corporation, they collect the solid waste from your homes, from your offices, from stores. ठीक है, स्कूल से भी इस तरह का सॉलिड वेस्ट मिल सकता है। तो जो भी हम अपने कहाँ से कलेक्ट करते हैं, स्कूल से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्कूल का वेस्ट हो सकता है और इट मे बी द होम वेस्ट हो सकता है, या फिर कोई बड़े-बड़े स्टोर है तो दिस आर द वेस्ट दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम दोस स्टोर्स। ठीक, इसके अलावा ऑफिस में से कलेक्ट किए जाने वाला वेस्ट हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस दे कम्स अंडर द म्युनिसिपल वेस्ट और द सॉलिड वेस्ट। तो ऐसा है यूज द टर्म सॉलिड, दिस मींस the type of material that is present in this waste is a solid waste. So what kind of material it is? It includes the plastic waste. ठीक है बेटे, प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, then it is ग्लास वेस्ट हो सकता है, फिर लेदर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, रबर हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, पेपर हो सकता है तो आपके लिए यूजफुल नहीं है, पुरानी नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, ऑल ऑफ दीज आर कम अंडर द सॉलिड वेस्ट। ठीक है बेटे, तो हाउ दे सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम योर place by the people that are working in municipal corporation and they later dispose of this waste. They are using variety of method for the disposal of these waste. What are these methods? Okay, what are these methods? So methods for disposal of waste are कौन-कौन से मेथड हो सकते हैं बताइए? सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का एक सिंपल सा मेथड कौन सा आपके माइंड में आता है? नंबर 1 इज ओपन डंप्स। ठीक है, whatever garbage is present in our home, offices, in our schools, we generally collect that garbage and we throw it at a open place. ठीक है, किसी भी ओपन प्लेस के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं and later on we burn that garbage. Alright बेटे, so what the people of municipal corporation do, they collect the solid waste from your homes, offices, schools and they dispose of the solid waste by throwing it on an open land. ये किसी का वैकेंट प्लॉट है उसमें उन्होंने थ्रो कर दिया and later on क्या किया, they fired that waste, they burned that waste. So what happened,
इट जनरली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। पर देयर इज वन प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद दीस ओपन डंप एरियाज। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? तो कहते हैं कि ये ओपन डंप एरियाज जो है वो कैसे एक्ट करती हैं? If the garbage is lying over these open dump areas for a longer time, in these open dump areas it acts as breeding grounds for so many microorganisms, rats, जब इसके रूडेंट्स घूमने लग जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ होने लग जाएंगे। रूडेंट्स से क्या आ जाएंगे? रैट्स आ जाएंगे, माइस आ जाएंगे, ठीक है, रैट फैमिली को बिलोंग करने वाले और एनिमल्स। तो ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स की तरह एक्ट करेंगे फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो डिजीजेस और एपिडेमिक्स क्या हो जाएंगी? स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है, ओके बेटा। क्योंकि ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे? बहुत सारी डिजीजेस जो हैं उनको आगे स्प्रेड करेंगे और वेक्टर्स की ग्रोथ हो रही है बिकॉज गार्बेज इज लाइंग ओवर देयर। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फाउल स्मेल जो है आ जानी है वहां पे, ठीक है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस नियर द रेजिडेंशियल एरिया, समबडी इज लिविंग नियर दैट एरिया, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फाउल स्मेल आने लग जाएगी उस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, कैन नॉट लिव इजीली नियर बाय दैट एरिया। What is another solution for dumping such type of solid waste or municipal waste? So instead of dumping our garbage in these open dump areas, there is one another solution that we generally adopted nowadays, and that is the sanitary landfill. How the sanitary landfill is different from those open dump areas? तो कहते हैं कि सैनिटरी लैंडफिल जो है उसमें हम क्या करते हैं? कोई भी लो लाइंग एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वी सेलेक्ट अ लो लाइंग एरिया, देन व्हाट वी डू, वी थ्रो आवर गार्बेज ओवर देयर। जो भी हमारा गार्बेज है उसको हमने थ्रो कर देना है वहां पर। और कैसे थ्रो करना है? तो गार्बेज जो है उसको हम डिप्रेशन में या ट्रेंचेस के अंदर डंप करते हैं, ठीक है। उस एरिया के अंदर हम क्या करते हैं? छोटी छोटी सी डिप्रेशन बना लेते हैं या फिर ट्रेंचेस बना लेते हैं और उसके अंदर हमने क्या करना है? अपना गार्बेज उसको थ्रो करना है, ठीक है बेटे। पर व्हाट इज द स्पेशल थिंग कि व्हेनेवर यू थ्रो योर गार्बेज इन दीस डिप्रेशंस और ट्रेंचेस, लेटर यू कवर इट विद द अल्कोहल। क्या करेंगे? उसके ऊपर थोड़ा सा हमने क्या करना है? सॉइल की लेयर डाल देनी है और सम डस्ट इज और सम डर्ट इज कवर्ड दैट पर्टिकुलर गार्बेज, ठीक है बेटे। हर बार वहां पे गार्बेज डंप कर रही हैं, देन लेटर ऑन लेयर ऑफ द सॉइल इज यूज्ड टू कवर दैट पर्टिकुलर गार्बेज। But you know that the population it keeps on increasing day by day, so sanitary landfill is not the proper solution. जितनी मर्जी बड़ी लैंडफिल आप बना लो, एक टाइम के पे क्या होनी है? फिल हो ही जानी है, ठीक है। तो क्या फिर हम न्यू प्लॉट सिलेक्ट करेंगे? तो दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद द सैनिटरी लैंडफिल, एंड दैट प्रॉब्लम इज सीपेज ऑफ, ठीक है। इसमें जो भी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं या टॉक्सिक केमिकल्स से मतलब क्या हो जाते हैं? सीपेज हो जाते हैं। सीपेज का मतलब है कि पासिंग थ्रू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है, और डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल जो है उसमें से पास होने के बाद वो क्या करते हैं? दे पॉल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर, एंड यू नो दैट अंडरग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर इसमें जो भी टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट है हमारे गार्बेज में वो सीप करके नीचे चले जाएंगे एंड दे पॉल्यूट द अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर, जिसको कि हम हाइजीनिक सोर्स कहते हैं। और इफ वी जनरली यूज दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, तो लेटर वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी वाटरबॉर्न डिजीजेस, ठीक है। तो सैनिटरी लैंडफिल इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। उसके बाद वो कहते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट is there actually and how can you successfully manage? So one thing that is discussed here is
let's discuss certain steps और उसमें से उसमें पहला स्टेप आपको ये बोला है कि first of all when we collect the garbage we have to do the sorting of that garbage. ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारे पास गार्बेज आया उसको हमने क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है. ठीक है, सेपरेट कर लो उसमें से किस टाइप का वो गार्बेज है. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट इज देयर? 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज देयर. ओके बेटे, व्हाट 3 तरह का सॉलिड वेस्ट हो सकता है आपका. ठीक है, तो उसमें ए टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट इज रिसाइक्लेबल वेस्ट. ओके बेटे, recyclable waste is actually that solid waste which can be recycled. ठीक है, तो देखो कौन कौन सी चीजें रिसाइकल हो सकती है. प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है, पेपर रिसाइकल हो सकता है. ठीक है, कुछ केसेस में सर्टेन मेटल्स जो है उनको रीयूज किया जा सकता है. तो उसको हमने सेपरेट कर लेना है रिसाइकल वेस्ट का, और उसके बाद उस रिसाइकल वेस्ट को सेल कर देना है. उसको सेल करना है कबाड़ी वाले को सेल करते हैं. ठीक है बेटे, and these कबाड़ी वाला और the pickers they are playing a very important role in the recycling process. They collect this recycled waste from your homes and they later passes to the recycling units or factories और वहाँ पे उनकी recycling हो जाती है. ठीक है, सेकेंड टाइप का वेस्ट कौन सा हो सकता है? सेकेंड टाइप का वेस्ट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Okay, but you have learned in the previous classes that how you can successfully manage these biodegradable waste. तो हम क्या करते हैं, we make a small pit. एक pit बनाते हैं and then we dump our solid this biodegradable waste in it. सोचिए क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें. peels हो सकते हैं. ठीक है, peels of fruits हो सकते हैं plus peels of vegetables. And later what we do, we dump these peels of vegetables or fruits into some small pit that you generally construct in your kitchen garden, and later on by the applications of red bombs. ठीक है, या तो आप red bombs ले आइए, otherwise आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, no problem. So after a period of some days, what happened? The peels of these fruits and vegetables will later convert into the compost, and that compost you can use as a natural fertilizers for the vegetables what are growing in your kitchen garden. So that is an appropriate solution. Okay, but the third type of waste, that is the non-biodegradable waste. We can know that it is a non-biodegradable waste, so we cannot make compost out of it. So what we do with this non-biodegradable waste, we can reduce the amount of this non-biodegradable waste. हम इसका amount जो है उसको reduce कर सकते हैं. For this purpose we can use some machines. Okay, and what is those machines? They are called as, they are known as incinerators. इनको हम क्या कहते हैं? Incinerators. So we put this non-biodegradable waste, which is actually the solid waste, such as the thermosetting plastics हैं या फिर metallic cans हैं, उसके incinerator machines में डाल देंगे. उससे क्या होगा? Their masses it keeps on reducing and we can successfully manage them either in the landfills or some other place where we can easily dump them. Okay, but no problem is there. After that, one another type of waste is given here, and that is the hospital waste. ठीक है, so what comes under hospital waste? तो उसमें वो कहता है कि there may be some injections that are used for the treatment of various diseases. ठीक है बेटे, the old bed sheets where the patients they generally lying in the hospitals, some injections are there, some syringes are there, some ठीक है old blankets are there. So all of these they contain certain pathogenic microorganisms, ठीक है, certain toxic substances, disinfectants with it. So it is not easy to manage this type of hazardous waste. ठीक है, इस तरह के poisonous waste को हम अगर dump कर देते हैं open place में, तो that is not an appropriate solution. So what we do with this hospital waste, we always make use of incinerators for it. ठीक है, how you manage the hospital waste? हमने hospital waste जो है incinerator machines में डाल देना है, and in this way their amount can be reduced, and later on we can successfully throw these waste in sanitary landfills or some other places. Okay, but one another type of waste here,
we discussed, and that is the electronic waste or the e-waste. ठीक है, what is this e-waste or electronic waste? It is actually the waste that comes from the electronic devices. e-waste हम word use करते हैं, that designates for electronic waste. ठीक है बेटे, अब क्या हो सकता है ये वेस्ट? वेस्ट दैट जनरेटेड आउट फ्रॉम इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स। ठीक है, कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं जो रिपेयर नहीं हो सके हैं, तो उसका वेस्ट जो है उसको कंसीडर किया जा सकता है यहाँ पर। ओके बेटे, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कंप्यूटर एक्सेसरीज हो सकती हैं, कुछ कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं जो पुराने हो गए हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सो हाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इट जनरेट्स? तो कहते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज नॉट एक्चुअली एसोसिएटेड विद द डेवलपिंग कंट्रीज, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें से ये वेस्ट आता है, और डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। कौन से कंट्रीज को? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है बेटे, and what the people of these developing countries do, they do the recycling of this e-waste. As you know that the developed countries, they are advanced in technologies. Developed countries जो इनके पास कैसी technologies हैं, advanced in technologies, and they have special type of factories for the recycling of this e-waste. But what these people do, they transport their e-waste to the developing countries, and here the technologies they are not properly developed, and here the recycling is done manually. ठीक है बेटे, मैनुअली रिसाइकलिंग की जाती है। कौन करते हैं? लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन दीस पीपल दे आर सेपरेटिंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल्स फ्रॉम दिस ई वेस्ट। देखो यहाँ पे काफी सारे मेटल्स के नेम दिए हुए हैं, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, ठीक है, गोल्ड। व्हेन दीस आर रिकवर्ड फ्रॉम दिस ई वेस्ट, so sometimes the laborers that are involved in this task, they are suffering from different type of diseases, or sometimes they met with certain accidents। ठीक है, तो इस तरह से ई वेस्ट जो है वो उनके लिए इंजूरियस हो सकता है। ठीक, तो अब वो कहते हैं कि इस तरह से ई वेस्ट जो है उसका एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ये है कि या तो इंसिनरेटर मशीन्स को यूज किया जाए, उससे इसका अमाउंट जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, और जब उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, वी कैन सक्सेसफुली थ्रो देम इन द sanitary landfills, and later we covered these sanitary landfills with the layer of soil. Okay, but here one case study is also given, and that is the case study which act as a remedy for the plastic waste. And here he is talking about a person, and the name of the person is Ahmed Khan. ठीक है, Ahmed Khan has given a successful solution for the management of plastic waste. ठीक है, अहमद खान जो है उसका नेम अपनी आदत में, उनकी एज कितनी है? लगभग 57 इयर्स के थे ये अहमद खान। एंड व्हाट ही डिड, तो कहते हैं कि ही गिव अ सॉल्यूशन फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, उसने ये कहा कि हाउ यू कैन इजीली overcome the problem of increasing plastic waste or polythenes which keep on increasing day by day. ठीक है, you know that whatever thing we generally brought from the markets that comes under some packaging material, so in this way the plastic waste or the polythenes they keep on increasing in your homes. ठीक है, and we throw generally these polythenes anywhere, so it causes the soil pollution. Sometimes they choke the air passages of the animals, and they are responsible for the death of the animals. So what Ahmed Khan did, Ahmed Khan who is 57 years old, ठीक है, तो 20 सालों से 20 years से अहमद खान जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? प्लास्टिक सैक्स बनाने की उनकी फैक्ट्री थी, मतलब प्लास्टिक वेस्ट जो है उसकी रिसाइकलिंग करते थे और उससे प्लास्टिक जो है सैक्स बनाते थे, मटेरियल्स बनाते थे अलग अलग तरह के रिसाइकलिंग करने के बाद प्लास्टिक के। ठीक है,
तो कहते हैं कि 20 साल तक उन्होंने ये काम किया और उसके बाद आफ्टर 8 years के बाद what Ahmed Khan observed कि plastic waste it keeps on increasing, so we have to make use of this plastic waste. जो भी ये प्लास्टिक वेस्ट है क्यों ना उसका कुछ ऐसा यूज किया जाए जिससे कि जो सिटी है उसके अंदर ये प्लास्टिक वेस्ट जो है उसकी प्रॉब्लम जो है उसको ओवरकम किया जा सके. तो व्हाट ही ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रीसाइक्लिंग प्रोसेस, जब उन्होंने रीसाइक्लिंग प्रोसेस के दौरान क्या बनाया है, फाइन पाउडर बनाया. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइन पाउडर? ठीक है बेटे, देखो सी इट इज गिवन इन द बुक, इट इज नोन एज पॉलीफ्लैंग. What he observed during the process of recycling of the plastic waste, he always found a fine powder, and the name of the powder is polyblend. And he said when this polyblend it is mixed with bitumen. Okay, bitumen is a kind of a material that is generally used for constructing roads. Roads अगर बनाने हो ना उसके अंदर यूज किया जाता है bitumen को. तो उन्होंने कहा कि जब भी वो प्लास्टिक वेस्ट जो है रिसाइकलिंग करते हैं तो उन्हें एक पाउडर मिलता है एंड उसका नेम है पॉलीब्लैंक. And when it get mixed with bitumen, and what they do, उन्होंने कहा कि अगर उससे हम रोड्स बना लेते हैं आगे, तो इस तरह के जो रोड्स हैं उसमें जो बिटुमिन यूज हुआ है जिसमें पॉलीब्लेंड उन्होंने यूज किया है, ठीक है, तो दैट पॉलीब्लेंड इट इंक्रीजेस द एज ऑफ दैट बिटुमिन मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. ठीक है, तो जनरली व्हाट यू ऑब्जर्व दैट व्हेन वाटर इज lying over the road, it generally breaks the road if it stay there for longer time. ठीक है, अगर पानी किसी जगह पे रोड पे पड़ा रहता है तो वाटर जो है उसकी वजह से जो रोड है वो टूटने शुरू हो जाते हैं. तो उन्होंने अहमद खान ने ये सॉल्यूशन दिया कि अगर हम ये जो फाइन पाउडर जो हमें रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के दौरान मिलता है, इट इज मिक्स्ड विद दिस बिटुमेन व्हिच इज द मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रोड दैट इट एनहांसेस द वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द बिटुमेन्स. तो इस तरह से बनने वाले जो रोड होंगे ना उनकी एज काफी ज्यादा होगी. ठीक है, दिस पर्सन बिलोंग्स टू बेंगलोर सिटी. तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेंशन व्हाट दिस अहमद खान डिड, ठीक है, तो ही सजेस्टेड whatever he decide with the people of the RB College of Engineering and Bangalore City Corporation, and with the help of these peoples later they constructed so many roads in Bangalore. तो 40 kilometers तक roads जो उन्होंने बेंगलोर के अंदर ऐसे बनाए, and it contains polyblend that is mixed with the bitumen, and these roads they have showing the water repellent properties. ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि what is the special thing related with this case study. तो earlier this plastic waste is generally picked up by the rag pickers. ठीक है, तो जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता था ना, जो भी लिफाफे वगैरह होते थे वो रैग पिकर्स लेके जाते थे और उनको 40 पैसे मिलते थे उसके लिए. तो व्हाट अहमद खान डिड दैट टाइम कि उन्होंने रैग पिकर्स को ये बोला कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 40 पैसे आई विल गिव यू 6 रुपीज फॉर 1 प्लास्टिक बैग. अगर तुम मेरे पास एक पॉलिथीन बैग लेके आता तो मैं आपको कितने रुपीज दूंगा? 6 रुपीज दूंगा. तो इस तरह से रैग पिकर्स जो हैं, ठीक है, दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर फॉर कलेक्टिंग दिस प्लास्टिक वेस्ट. ठीक है, होड़ मच गई उनके बीच में और ज्यादा से ज्यादा दे कलेक्ट द प्लास्टिक वेस्ट एंड दे गिव इट टू अहमद खान. एंड एट वन टाइम व्हाट हैपेंड, द प्लास्टिक वेस्ट कीप ऑन रिड्यूसिंग इन द सिटीज. ठीक है, तो अहमद खान ने जितना भी उनके पास प्लास्टिक वेस्ट आया, पॉलिथीन बैग्स आए, उनको उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? पॉलीब्लेंड में. और लेटर ऑन उससे उन्होंने क्या बनाए? रोड बनाए. इस तरह से जो ओवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम थी प्लास्टिक वेस्ट की वो फाइनली क्या होगी? ओवरकम होगी. ठीक है बेटे, so what is written in the last line, if other people, if the common people can done such kind of invention, ठीक है, तो उससे हम किसी भी तरह से जो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं अगर हर एक बंदा इसी तरह की कोई इन्वेंशन जो है वो करता है. ठीक है, तो ऐसा बेंगलोर सिटी में किया गया. दिस इज क्लियर बेटे, यू कैन इजीली राइट. आफ्टर दिस वी हैव द अनदर टॉपिक एंड दैट इज एग्रोकेमिकल्स एंड इफेक्ट. ठीक है, what are these agrochemicals? देखो नेम से पता लग रहा है, agrochemicals are the type of chemical substances that we generally use to increase our crop production or yields. ठीक है, तो agrochemicals they are the source of pollution. Okay बेटे, so what is agrochemicals actually are? They are the different type of pesticides.
ठीक है, ये अलग अलग तरह की पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं, these may be the insecticides और these may be fungicides, pesticides. Okay, but all of these agrochemicals, they act as the source of pollution. How they act as source of pollution, I have already discussed. They are involved in the